So this is introduction to computer and programming in C. For each and every class, different names has been suggested. Okay, but syllabus is same, so no problem. Now the main objective of this course module is to acquaint the student with the basics of computer system, its component, data representation inside computer, and get them familiar with various important features of procedure oriented programming language, that is C. Okay, so here uh, these are the contents. Introduction to computer history. Von Neumann architecture already discussed. So what is inside von Neumann architecture? Input, output, and input and output. Inside that, CPU is there. CPU is, it consists of control unit and arithmetic and logical unit. Similarly, there is concept of memory and storage. Okay, so this is nothing but stored program organization. Stored program organization. Now come to memory system hierarchy. So inside that hierarchy, what are the things we have discussed? Register is in top of hierarchy, then cache memory, then RAM or physical memory. Okay, after that hard disk drives, and after that CD or optical disk. Fine. So this is the hierarchy we have followed. Hardware concept, input output devices. Software concept, system software and application software and utilities. Already discussed, there are different hardware concept like input output, CPU, arithmetic and logical unit. These are the hardware. And software, there are different types of software: general purpose, special purpose, system software, user defined software. Different softwares are available. Then data representation. So data representation, how do we represent data in different technique? So integer, float, not discussed, but we have discussed how do we represent the data in binary number system. Okay, then character representation code. So this portion is not touched. So this we will discuss in later on. Binary, octal, hexadecimal, and their interconversions. So this is already done. This portion is still left there. Floating point arithmetics. Some portion we have covered, and some portions are still there. And memory and storage unit. Okay, so this is also completed. So only the portion related with arithmetic is there we need to discuss. So when we talking about computer, so there are, what are the components of computer? Software, okay, software, then components of computer, application in society, categories of computer, networks and internet, and what are the advantages and disadvantages of using computer. So this already discussed. Different components means input and output. So input devices, output devices, system unit, storage devices, communication devices already discussed. These are the input devices, these are the output devices, and some devices belongs to input and output, both categories. If we're talking about system unit, so system unit includes processor, and for communication we use routers like Jio Fiber, Airtel 4G hotspot, and special type of processors are also there. These are the graphical processor like NVIDIA, Tesla, Ryzen, etc. And then we have also discussed the storage devices like SSD and HDD. And what is the difference between SSD and HDD? How with respect to access time, random input output performance, reliability,
energy saving, CPU power, input output request times, backup rates. These all things we have covered in this. Then different categories of computers, which includes personal computer, mobile computers, and mobile devices. And these devices are not limited to notebook, tablet, smartphone, PDA, handheld computer, portable media device, digital computer. Then other categories like game console, XPS, and some other systems are there. Servers, mainframe, supercomputer, and embedded computers. Okay. Then software. We had discussed software. Software, three different categories or two different categories of softwares exist. Okay. Some book shows that the software is some book divides software into system and application, and some other book also divide this software into utility software. So system software, application software, and utility software. Actually, the software which belongs to system software is dedicated for system only. Okay. Without this, we are unable to run our program. So there are two categories of system software: operating system and language translator. Here in this classification, operating system is one system software, and utility programs may include different things. So we can also include the uh, language translators, because it is also very important. Language translators, like there are three different programs. What are three different program? कंपाइलर का मतलब होता है कि वो पूरा की पूरा प्रोग्राम जो है वो रीड करेगा, एंड रीड करने के बाद उसको कंपाइल करेगा. द होल प्रोग्राम हैज बीन रीड बाय द compiler, and then it is translated into low level language. So what is the how compiler works? Like, this is a compiler. Here we have written the program in high level language. Okay. High level language like English like language, and machine language like whatever written in binary. So a program written in high level language is compiled by the compiler, and it will generate the target code. Not necessarily target code, sometimes it will generate the object codes also. In case of C programming, it will generate object code. Okay. This object code is intermediate code, object code. Each and everything is stored in particular location. So if we have translate the program from high level language into object code, this is not relocatable course. So we merge libraries, system libraries, okay, and this library will be linked by this, and loader makes this program relocatable. Okay. So if we club all these things together, it will generate an executable code. Fine. So this is how compiler works. Now come to assembler. Actually, object code is little bit assembly language code. Assembly, not little bit, it is actually assembly language code. So what is assembly language code? Whatever programs are there, this program is translated into machine language. Okay, machine level language. And assembler means what is your assembly of what is the assembly of your machine. Fine. Each and every machine has different kind of assembly. So persons can, like assembly, how do we show? If a kid is there, okay, so whatever language he knows at infant age,
मतलब यदि कोई किड 1 दिन का है, 2 दिन का है, तो उसकी लैंग्वेज सिर्फ उसकी मदर को समझ में आती है। फिर सराउंडिंग्स को समझ में जो लैंग्वेज आती है, वो जब किड 6 महीने से बड़ा हो जाता है तो उसके बाद सराउंडिंग भी समझने लगता है कि किड क्या बोल रहा है। सो दिस इज असेंबली लेवल लैंग्वेज बिकॉज द किड इज असेंबल्ड। किड की जो असेंबली है उस पर्टिकुलर परिवेश के लिए, उस पर्टिकुलर माहौल के लिए हुई, तो उसके हिसाब से किड की लैंग्वेज रहती है, उस बच्चे की लैंग्वेज रहती है, उस इन्फेंट की लैंग्वेज रहती है। और इसी तरह से जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो वो जनरल लैंग्वेज जो उस पर्टिकुलर, उस पूरे मोहल्ले में बोली जाती है, उस पूरे टाउनशिप में बोली जाती है, उस टाउनशिप के हिसाब से वो बोलना शुरू करता है। तो दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज। और असेंबली लेवल लैंग्वेज इट इज होम स्पेसिफिक। तो सिस्टम, कोई भी सिस्टम हमने बनाया उसको समझने के लिए, क्योंकि हम 1010 पे तो नहीं समझ सकते, तो उसको समझने के लिए हमने एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल असेंबली कोड बनाते हैं हम उसके। लेकिन दिस इज स्पेसिफिक टू मशीन, स्पेसिफिक टू प्रोसेसर एक्चुअली। ओके, तो असेंबली कोड फाइन। So like move A comma B is an assembly code. In C language, the same thing written as B equals to A. Okay. In C language, this is written as this, and in assembly language, this is written like this. Okay. So this is all. This is the work of assembler, and ये ऑब्जेक्ट कोड जो है वो असेंबलर लेगा और उसको डी असेंबल करके और वापस 0101 के एकदम लो लेवल कोड में कन्वर्ट करेगा एंड इट विल बिकम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। इंटरप्रेटर, जैसे कि पाइथन आपने देखा होगा, पाइथन पे कई लोगों ने प्रोग्रामिंग भी की होगी। तो इंटरप्रेटर और दूसरी लैंग्वेज है जो सबसे पुरानी है, बेसिक। ओके, तो यहाँ पर आपने लिखा A+B फाइन और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो भी आंसर आएगा, मीन्स लाइन बाय लाइंस इंटरप्रेट करना इंटरप्रेटर का काम होता है। ओके, सो दिस इज हाउ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सर ये ऑपरेटिंग सर सॉरी टू डिस्टर्ब सर। हाँ सर ये कितने बजे तक चलेगी सर ये सेशन? 5 बजे तक। ओके सर। तो आप कुछ करना हो, जैसे ये वाला पोर्शन यदि आपका हो गया हो तो आप क्लास क्विट करके बाद में क्योंकि वो 15 मिनट की क्लास के बाद में फिर नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा। ओके सर। इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, और इसलिए पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता भी नहीं था, और ये रिकॉर्डिंग भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो इस रिकॉर्डिंग को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को वैसे रिकॉर्डिंग की अब जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर फिर भी so this is a different type of language translators. Now come to application software. So general purpose application software, these are the general purpose application software. General purpose application software like Word, PowerPoint, Excel, ये सब हर पर्सन, हर कोई यूज कर सकता है, और इसमें कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं होती है। कहीं पर भी यूज करे, वर्जन टू वर्जन पर वेरी करेगा, बाकी मोर और लेस द वर्किंग इज सेम। लेकिन स्पेशल पर्पस, जैसे बिलिंग का ही सॉफ्टवेयर का मैंने एग्जांपल बताया था, तो आप बिलिंग का सॉफ्टवेयर देखोगे तो हर एक पर्सन के लिए अलग बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है। बिग बाजार का अलग होगा, रिलायंस ट्रेंड का अलग होगा, रामू किराना स्टोर का अलग होगा, है ना, मोनू वस्त्र भंडार का अलग होगा। एवरीवेयर whatever varieties of shops are there, and for each variety of shop, even for 2 different medical stores, the software is different. Fine. So this is known as customized or special purpose software. Special purpose software. Fine. So any doubt related with software?
सो दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम. सोलारिस अब पूरी तरह से बंद हो चुका है. एचपी कुछ अपने प्रोप्राइटरी सिस्टम में मिलते हैं वो सॉफ्टवेयर. आईबीएम के भी सॉफ्टवेयर, एक्चुअली एचपी और आईबीएम दोनों यूनिक्स देते हैं. ओके, एचपी का यूनिक्स और आईबीएम का यूनिक्स. देन वीएमवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैक. एप्पल के भी अलग अलग कौन कौन से आते हैं? दो सॉफ्टवेयर, एक तो ओएस एक्स आता है और दूसरा मैकिंटॉश, है ना. देन ओरेकल, रेड हैट एंड फेडोरा, both are same thing. Only difference is Red Hat is proprietary software and Fedora is open source. CentOS is another flavor of Linux. Whenever a person asks which operating system you are using, so don't respond to them or him that I am using Linux operating system, because Linux is not an operating system. It is just a kernel. Okay, this is just a facility of one facility of operating system. Above this kernel, different softwares will be installed. Okay, so Fedora uses different software. CentOS different, Debian uses different, Ubuntu uses different, Mint, SUSE, Magenta, Mesa, Arch Linux, Slackware, Mandriva, Zen2, Free, ये सारे Linux के फ्लेवर है, सारे के सारे. Slackware एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. Slackware का एग्जांपल है Mulux. इसकी खास बात ये होती है कि आप इसको डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप इसमें एक फॉर्मेटेड पेन ड्राइव में इसको डाल दो. मतलब इसको अनकम्प्रेस करके अनजिप करके वहां पर डाल दो. फिर वहां पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, उस फाइल को जस्ट डबल क्लिक करो. डबल क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली योर पेन ड्राइव विल बिकम बूटेबल और फिर आप अपने पेन ड्राइव से किसी भी सिस्टम को ऑन कर सकते हैं. ठीक है, बस इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास बूट मेन्यू जो है वो होना चाहिए. बूट मेन्यू में पेन ड्राइव फर्स्ट इसे रिपीट करना है एक क्या चाहिए? रिपीट करना की प्रोसेस. हाँ, सबसे पहले आप मूलक्स को डाउनलोड करेंगे, है ना, और एक फॉर्मेटेड पेन ड्राइव में अनजिप करके डाल देंगे उस फोल्डर को. वहां पर एक रीडमी फाइल होती है, वो रीडमी फाइल बताती है कि आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है. उसमें जो भी वो पाथ बताएगा उस पाथ में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, बैच फाइल, BAT एक्सटेंशन होगा उसका, या शेल फाइल. आप यदि लाइनक्स से भी बनाएंगे तो भी क्रिएट होगा और इससे विंडोज से भी बनाएंगे तो भी क्रिएट होगा. अब आपको क्या करना है कि उस बैच फाइल को डबल क्लिक करना है और जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनको फॉलो करना है, एंटर यस नो. तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों को पास करने रहते हैं हम लोग को, क्योंकि वो सारी चीजें चाहिए रहती है. और जैसे ही आपने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली दिस पेन ड्राइव विल बिकम बूटेबल. अब बूटेबल पेन ड्राइव बन गई है तो जब आप बायोस सेटिंग पे जाएंगे, बायोस सेटिंग पे जाने के बाद सबसे पहले आप पेन ड्राइव को लगा लेंगे. उसके बाद जैसी बायोस सेटिंग आएगी एस्केप या कोई अदर की से, वहां पर जाके आप बूट ऑर्डर पूछेगा. ठीक है, बूट डिवाइस ऑर्डर, तो वहां पर आपका पेन ड्राइव दिखेगा. सपोज HP का है तो HPV4629 इस टाइप से कुछ दिखेगा. जो भी इस पेन ड्राइव की आइडेंटिटी होगी वो दिखेगी. और यदि पेन ड्राइव नहीं होगा तो यू कैन नॉट पुट इट इन बूट सीक्वेंस. तो आपको पेन ड्राइव लगा के ही बूट सीक्वेंस मिलेगी. अब इसके बाद आप जैसे ही सिस्टम ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली मूलक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत सारे स्लैकवेयर्स आते हैं. इसके अलावा स्लैकवेयर पे आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप यहाँ पर एक लिखा है CentOS, Ubuntu और Mint, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं. एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है. एक बूटेबल बनाने का एक पूरा की पूरा सॉफ्टवेयर आता है, उस प्रोसेस के थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो और उस प्रोसेस के थ्रू पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो. ठीक है, तो इट विल टेक हाफ एन आवर. और जो मैं बता रहा हूँ उसमें केवल डाउनलोड में हाफ एन आवर लगेगा, बाकी उसके बाद काम तो आराम से हो जाता है. ठीक है,
Then these are the flavor of Unix. Those who want to use Unix truly, they can download, because Unix is proprietary software and you are आपके पास ऐसा जबरदस्ती का पैसा नहीं है कि आप इसको खरीद सके। तो इसको खरीदने से अच्छा ये है कि आप फ्री में फ्री BSD, ओपन BSD, नेट BSD, ड्रैगन फ्लाई BSD और डार्विन, ये पूरे के पूरे में से जो फ्लेवर आपको पसंद है वो यूज कर सकते हैं। मेरे को कोई भी फ्लेवर पसंद नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली। ओके, कुछ ना कुछ इनका प्रॉब्लम रहता है, जैसे कभी रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है, एंड बिकॉज इट इज फ्री प्रोजेक्ट, तो हाउ कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, तो वो उतना अफोर्ड करते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन पे। सो एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन आप डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में, और उसके बाद आप वहाँ पर एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन चला सकते हैं। और उस वर्चुअल मशीन में जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, कुछ ऐप्स ऐसी होती है जो कि सिर्फ एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम में ही चलेगी, तो आप वहाँ पर चला लो, ठीक है। तो आप मोबाइल में नहीं चलाना चाहते हैं, आप अपने सिक्योरिटी को लेकर बहुत कंसर्न है, तो सबसे अच्छा ये है कि एंड्रॉयड की वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लीजिए, और एंड्रॉयड की वर्चुअल मशीन में ही सारे के सारे सॉफ्टवेयर जितनी भी एप्स हैं वो उसी जगह पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। देन नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल। इंटरनेट के साथ क्या क्या चीजें हैं, नेटवर्क के साथ क्या क्या चीजें हैं। तो नेटवर्क में जो सबसे ज्यादा अभी जो ट्रेंड में चलती है वो है ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा आपके पास दूसरा ट्रेंडिंग वर्ड है हॉटस्पॉट, तीसरा ट्रेंडिंग वर्ड है 5G, ओके, चौथा ट्रेंडिंग वर्ड है रिलायंस जियो, और क्या है, और कोई राउटर। इसके अलावा और कोई चीजें आप लोगों ने सुनी? मॉडेम, राउटर। What is the difference between modem and router? Sir, router is only for Wi-Fi extension, whereas modem is used for input as well. Router is used for? Sir, Wi-Fi only. Wi-Fi की रेंज बढ़ाने के लिए। तो Hotspot- आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी मॉडेम रहता ही है इंस्टॉल्ड सिस्टम में? नहीं सर, मॉडेम एक्सटर्नली लगाना पड़ता है। राउटर के साथ इंटीग्रेटेड आते हैं कुछ मॉडेम जिसमें राउटर भी होता है, और एक्सटर्नल राउटर भी आते हैं। एक्सटर्नल राउटर ही आते हैं, इंटरनल राउटर तो आते ही नहीं है। नहीं सर, मॉडेम के साथ कोई कोई मॉडेम आते हैं जिनमें इनबिल्ट राउटर्स होते हैं, जिनमें वाईफाई कैपेबिलिटी होती है, जो हॉटस्पॉट दे सकता है। नहीं, राउटर के साथ मॉडेम होगा ही होगा हमेशा। मॉडेम एक्चुअली दिस इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। सर मॉडेम को वायरलेस यूज नहीं कर सकते, यूएसबी राउटर को यूज कर सकते हैं वायरलेस भी। हाँ, एक्चुअली बिना मॉडेम के तो आप आपको सिग्नल को मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट तो करना ही होगा। एग्री और नॉट? व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि जो आप जो सिग्नल भेजते हैं ना, वो सिग्नल रहता है डिजिटल्स, ऐसे पल्सेस के फॉर्म में। सपोज आई एम plotting one signal, this is 1 0 1 0 0 0 1 0. This is just an example. Actually there are different encoding method, but to understand this is sufficient for you. Now आप इस तरह से सिग्नल तो नहीं भेज सकते हैं, तो आपको ये सिग्नल को जो है भेजना पड़ता है मॉड्यूलेटेड वेव में। ओके, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, फिर सिग्नल होती है, कैरियर सिग्नल मिला के हमारी मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी बनती है, और ये फिर इस तरह से डेटा जो है वो जाता है, और इसके साथ ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होने के बाद यहाँ पर हम इसको डीमॉड्यूलेट करते हैं। डीमॉड्यूलेट करने के बाद वापस से इसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं,
और जब डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं तभी हम किसी भी चीज को रीड कर पाते हैं। तो ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इज ऑल्सो देयर, वन डिवाइस। जो आपके पास ऑप्टिकल राउटर है वहां पर सिग्नल मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट होते हैं, 1010 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होते रहेंगे। ठीक है। So modem is a physical layer device while router is the upper layer device. तो वो आपको जब आएगा सिस्टम उसमें बताऊंगा, ठीक है। यानी ये आप लोग खुद ही पढ़ोगे, जो भी नेटवर्क पढ़ाएगा वो टीचर आपको बताएगा। नाउ इंटरनेट, इंटरनेट तो आप लोगों को पता ही है। नेटवर्क एंड इंटरनेट में कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रेडिंग, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक डाउनलोड, शेयर वीडियो, वेब एप्लीकेशन, और क्या है, गेमिंग होती है, और क्या करते हैं हम, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, I think sir ऑनलाइन everything we can do in online. ऑनलाइन, करेक्ट। Yes sir. Similarly, social networking is there. Facebook, Insta, WhatsApp, Botim, और क्या क्या होते हैं, टेलीग्राम, टेलीग्राम तुम लोगों ने खूब यूज, स्नैपचैट, ओके। और हाँ, I think everything sir we can do it online. ऑनलाइन ऑफलाइन। सो और क्या क्या होता है, बहुत सारा तो लिखा हुआ, फ्लिकर होता है, स्काइप होता है, वाइन होता है, पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट होता है, और भी कई सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें, ट्रिमेंडस, जो आपको बाइडू और पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए। Now come to application in society. So there are different applications in society like education, finance, government, healthcare, science, publishing, travel, manufacturing. Okay. And computer के advantages, disadvantages है, advantage है speed, reliability, consistency, storage and communication. Disadvantage है health risk, violation of privacy, public safety, impact on labor force and impact on environment. तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज शेयर करूंगा कि पासवर्ड आप कैसे याद रखें, अपना बनाया हुआ पासवर्ड कैसे याद रखें और अपना पासवर्ड कैसे बनाएं। ठीक है। अब आप यदि कोई भी रैंडम कैरेक्टर्स लेते हैं तो पासवर्ड भूलने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, है कि नहीं? एग्री है नॉट? यस Yes, सर। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. अब आपको Yes, sir. पासवर्ड में डॉलर यूज करना है, हैश यूज करना है, @ यूज करना है, परसेंटेज यूज करना है, फिर नंबर्स भी यूज करना है ना। इसके अलावा कैपिटल स्मॉल भी यूज करना है। ठीक है। तो अब हम कैसे किस तरह से पासवर्ड को बनाएं कि पासवर्ड याद भी रह जाए और बहुत टफ सा पासवर्ड हो। अब इसका तो एक तरीका है कि पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 रख लो, है कि नहीं? तो लेकिन sir. उसको याद करना पड़ता है कि 1 में कहाँ 1 है, फिर 2 है, 2 टाइम्स 3 है, 2 3 है ना, 3 4 लिखा है तो ये 3 4 हो गया। ठीक है। फिर 5 है। किस टाइप से आप लिखना चाहते हैं, ये एक तरीका है जो बहुत ही खतरनाक तरीका है। गेस करना थोड़ा सा ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है ना, कि 1 2 3 4 ये तो आप ही समझ पाओगे कि क्या कितने टाइम्स यूज करना है। ये लिखा ना 1 2 3 4 5 लिखा है या नहीं? यस सर। पक्का? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। ये 1 2 3 4 5 लिखा है ना, दिस पासवर्ड इज 1 2 3 4 5, यस सर। Yes, sir. करेक्ट और नॉट? करेक्ट सर। So Correct this sir. is one. Yes.
So this is one password. Now I am showing you another password, another method of remembering the password. So let me use some special codes. Okay. So on the basis of this, I can frame one password. So this is one password. ये एक पासवर्ड है। अब इसको याद कैसे करना है, और कोई भी नंबर जो है आप किसी भी प्लेस पे लगा लो, और किसी भी जगह पे वो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर लगाना है। और फिर इसके बाद मैंने लिख दिया, ठीक है, और नंबर बचा हुआ है ये। अब ये लिखा क्या है, ये पासवर्ड थोड़ा सा अनोखा लग रहा है, स्पेशल काइंड ऑफ पासवर्ड। एक मतलब हमारे हम लोगों के बीच में जो फेमस जोक है, क्योंकि हुआ ये करता था, शायद आप लोगों के बीच में भी होगा। तो आज 18 साल बाद देखा कि मेरे दोस्त का पासवर्ड जो है अपने 2 बच्चों के साथ घूम रहा था, है ना? Yes. तो आप लोगों को पता है पासवर्ड, है ना? तो ये पुराने टाइम में कॉमन ट्रेंड हुआ करता था, तब हैकिंग और ये सब इतनी बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। और हम लोग तो 3-3 4 ईमेल एड्रेसेस बनाते थे, है ना? लेकिन ईमेल एड्रेस बनाने के बाद लिख भी दिया ईमेल एड्रेस, अब इसके बाद मेल कौन करेगा हम लोगों को? किसके पास इतना टाइम है कि नहीं? प्रॉब्लम। तो बड़े खुश होते थे कि हमने इतने सारे ईमेल एड्रेसेस बनाए हैं और इतनी सारी चीजें की है, लेकिन वो सब किसी काम की नहीं थी। जब एक्चुअल में जॉब में आया और जब सारी चीजें शुरू हुई, इसके बाद ही पता लगा कि ईमेल एड्रेसेस का मतलब क्या होता है। तो अब ईमेल एड्रेसेस, ये तो एक चीज हो गई। पासवर्ड के बारे में अभी आपको बताता हूँ, ये वाला, है ना, ये वाला पासवर्ड है क्या। इसके बाद ईमेल एड्रेसेस, लोगों ने ईमेल एड्रेस बनाए हैं। अब क्योंकि चीजें मिल ही नहीं रही थी, तो @gmail.com, अब आपने इसको भेजा एम्प्लॉयर को, है ना? तो एम्प्लॉयर क्या करेगा आपके साथ? दिस इज योर ईमेल एड्रेस, वेदर दिस इज योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। यस। तो आप लोग कभी ईमेल एड्रेसेस इस तरह के ना बनाएं जिसमें कि आपको एम्बेरेस होना पड़े। बेहतर यह है कि यदि आपका नाम राम कुमार है तो ramkumar@gmail.com बनाए। तो राम बहुत सारे हो गए हैं तो मिलेगा तो नहीं ईमेल आईडी, है ना? तो उसके फिर कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, उस हिसाब से आप बनाइए। एंड दिस पासवर्ड इज रिटर्न फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेट फैसिलिटी, एंड द पासवर्ड इज when you demand love, ओके। इसके बाद कॉमा है, कॉमा की जगह मैंने हैश रखा, आर की जगह पे मैंने @ रख दिया, यू आर डिस्ट्रॉइंग लव। यस, So your voice is not ये proper. आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। माई वॉइस इज नॉट, It's not visible, sir. So screen is not visible. Screen is visible, but your voice is lagging, sir, a lot. Yes, I know. I need to check. The screen is also not visible here, sir. So somebody in some place internet is slow, and if my voice is lagging, then my internet is also slow. Okay. Now Yes. is it my voice is clear? My voice is clear now? Sir, it's better than Yes, before. sir, clear. Yes, sir. Better. You are Much audible. better. Okay.
Okay, so my voice is coming like Three Idiot में जब वो क्या नाम है उसका रस्तोगी हॉस्पिटल के अंदर रहता है, उसको जैसा सुनाई आता वैसी तो नहीं आ रही ना? आ रही थी हाँ सर, पहले वैसी आ रही थी, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। अभी भी आने लगी है ओके, सर अभी दोबारा आने वैसी लगी। आ रही है। Okay, so let me try with some other. Actually, I had applied for connection. Okay, I am in different place. So as soon as the connection is approved, I will be able to. सर आप पर्सनल हॉटस्पॉट ले आओ। सर टर्निंग ऑफ वीडियो हेल्प्स अ लॉट, सर आप वीडियो बंद करके कर लीजिए। तो अभी आ रही है आवाज सही? यस सर। Okay, यू आर ऑडिबल सर। I am audible. Thank you, thank you. Okay, so this is the password. What is what this password says? I am using one famous code. Okay, this SB shows you can put some places like this 20 and this, जहां भी आपको यूज करना वहां यूज कर सकते हैं, है ना? बाकी मैंने यहाँ यूज करके बताया। तो SB इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग का पासवर्ड है। 20 जो मेरा नंबर है वो रख रहा हूं मैं। फाइन, अब ये पासवर्ड है, ये कोड पे बेस्ड है। तो दिस पासवर्ड सेज व्हेन यू डिमांड लव, when you demand love, you are destroying love. ठीक है? So this quote is there in Art of Living book. So here the first word from, ये आपने ले लिया, और ये फर्स्ट वर्ड में जहां पर कॉमा आया तो कॉमा की जगह मैंने हैश रख दिया, और एक ए आया तो ए की जगह मैंने रख दिया @ ठीक है? तो इस तरह से ये पासवर्ड जो है मीनिंगलेस है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। अब ये तो मैंने कोड था मेरे पास रखा हुआ था, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा आप कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे आपका जो फेवरेट सॉन्ग होगा, है ना, जो भी फेवरेट सॉन्ग होगा उस फेवरेट सॉन्ग के जो फर्स्ट वर्ड्स आते हैं वो सारे वर्ड्स रख सकते हो। क्लियर? सर वी कैन जस्ट यूज अ पासवर्ड मैनेजर एज वेल। पासवर्ड मैनेजर इज सेकेंडरी प्रोग्राम, है ना, Yes. और अल्टीमेटली इट इज इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, सो वन कैन इजीली ट्रैक योर पासवर्ड। सर some password managers are really secure sir, उनके जो servers और database होते हैं they are highly encrypted as well as they are at the places where they don't have to get pressurized by governments and stuff. अब ये तो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोल सकते हैं, है ना, पर Yes, sir. फिर भी बाकी जिस दिन पैसा चोरी जाएगा उस दिन आप बताना, ठीक है? I know password managers are there and you can use password managers also, but if you want to make such kind of password and even bigger password, you can also use the same thing. Just आपको मतलब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनके पास लॉट ऑफ मेथड टू क्रिएट मैथमेटिक्स एंड पासवर्ड इज देयर, तो आप वहां से भी बना सकते हो, है कि नहीं? पर आपको ये याद रहना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। अब जैसे ये SB है, SB के अलावा यदि आप जीमेल में यूज कर रहे हैं तो जीमेल लिख लिया, है ना, आपके पासवर्ड में एक सिमिलरिटी तो रहेगी, यही पासवर्ड सारी जगह रहेगा, लेकिन आप जीमेल यूज करेंगे इसकी जगह पे। यदि आप कुछ और यूज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो ऐप भी लगा दिया वहां पर। जो भी आपको लगाना है, जिस हिसाब से आपको यूज करना है, तो पासवर्ड हर जगह अलग रहेंगे, लेकिन जो कुछ हर जगह सेम रहेंगे, कुछ प्लेसेस है वहां पर ये पासवर्ड आप रख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप पासवर्ड यूज करते हो, जब भी आप पासवर्ड डालते हो, तो आपके पासवर्ड जो है की लॉगर प्रोग्राम से ट्रेस होता है, ठीक है?
की लॉगर प्रोग्राम क्या होते हैं? जो भी आप की पे टाइप करते हो वो की को टाइप करने के हिसाब से वहाँ की लॉगर जैसे हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किसने किया हमको पता भी नहीं लगा, तो हम जो भी की टाइप करते हैं किसी भी बैंकिंग साइट पे जाने पर तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेस करता है कि कौन कौन सी कीज हमने टाइप की है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जैसे ही आप पासवर्ड डाल रहे हो है ना, जीमेल में पासवर्ड डाला, मान लो यही पासवर्ड है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, यूजर नेम डाला। यूजर नेम मान लो आपका है aditi29@gmail.com, ठीक है। अब ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस को आपने इस बॉक्स में टाइप करना शुरू किया, तो आपको केवल aditi29 भर टाइप करना है। तो आप क्या करो, ए टाइप करो और फिर यहाँ से बाहर निकल जाओ। जब किसी बाहर, अपने सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं और, तो यहाँ से माउस से यहाँ बाहर निकल जाओ। अब आप कुछ भी और टाइप कर दो, कुछ भी मीनिंगफुल टाइप कर दो। जैसे आपने टाइप कर दिया अजय देवगन, ठीक है, और अजय देवगन टाइप करने के बाद फिर आप यहाँ पर आ गए और फिर इसके बाद यहाँ से बाहर निकला, अजय देवगन टाइप किया और यहाँ पर आने के बाद DITI टाइप किया और फिर 29 टाइप कर दिया, फिर @ टाइप कर दिया। @ टाइप करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद पासवर्ड के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी, एक कैरेक्टर टाइप करो, 4 कैरेक्टर यहाँ लिखो, दूसरा कैरेक्टर टाइप करो, फिर 4 कैरेक्टर यहाँ लिखो, फिर तीसरा, और इस तरह से रैंडमली आप टाइप करते जाओ। तो जो की लॉगर प्रोग्राम है वो वहाँ केवल की डिटेल पहुंचा रहा है। आप यहाँ क्या टाइप कर रहे हो वो डिटेल तो पहुंचा ही नहीं रहा, की लॉगिंग पर पहुंचा रहा है, और इस तरह से आप सिक्योर रह सकते हो। तो ये किस कंडीशन में, जब एकदम SOS है, सिस्टम आउट ऑफ सर्विस हो, जब आपके पास कोई चारा ना बचे, उस सिचुएशन में आपको यूज करना है। अदरवाइज आपको ना तो पब्लिक वाईफाई यूज करना है, ना पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी चीजें यूज करनी है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। So हाँ, we can also use two-factor authorization. टू That फैक्टर is- ऑथराइजेशन तो डेफिनेटली हमको यूज करना ही चाहिए, बिकॉज इट सेव्स आवर लाइफ। Yes, sir. तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें OTP आता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और SBI ने अभी फैसिलिटी शुरू की है टू फैक्टर सॉर्ट ऑफ थिंग, जहां पर आप यदि 10,000 से ज्यादा का विड्रॉ करते हो, है ना, तो Yes, उस sir. टाइम पे तो आपको OTP से OTP आएगा। confirm करना। हाँ जी सर। ओके, नाउ हिस्ट्री मैंने बता दिया था कि पहला जो कंप्यूटर था वो था अबैकस। अच्छा हाँ, इससे सिक्योरिटी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोग के? No, sir. क्लियर है आप लोग? हाँ, Yes. ओके। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा अवॉइड टू यूज सच ईमेल एड्रेसेस। ना, कंप्यूटर हिस्ट्री। तो कंप्यूटर हिस्ट्री में मैंने बता दिया था, पहला कंप्यूटर था अबैकस, फोर्थ सेंचुरी में था। अबैकस आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से होता है, इसमें बीट्स होती है और इन बीट्स की पोजीशन के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अबैकस के नाम से क्लासेस भी चलती है। देन ब्लेज पैस्कल ने पैस्कलाइन इन्वेंट किया था, जहां पर 8 डिफरेंट व्हील्स होती थी, और ये एडिशन के लिए हमने यूज किया था। इट कैन नॉट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ओके, एंड इवन सब्ट्रैक्शन आल्सो। देन लेबनिज ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था स्टेप रैकोनर, ओके, और स्टेप व्हील। अब यहाँ पर व्हील को अलग अलग पोजीशन पे रखा था और इन पोजीशन के इटरेशन के हिसाब से वैल्यूज चेंज होती थी। एंड दिस डिवाइस calculate square roots also, multiplication, division, subtraction, addition. But this device, actually the concept was very mechanical, पर हर एक मैकेनिकल चीज 100% फुल प्रूफ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो वो भी इस तरह से वर्क नहीं कर पाई, है ना। ये जब से बनी तब से वर्क ही नहीं कर पाई। इसके बाद ये चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन बनाया था, ये अभी भी चलता है, और ये इसमें पूरी मैकेनिकल डिवाइसेस थी, और ये मैकेनिकल डिवाइसेस की बेसिस पे सारे कैलकुलेशंस होते थे। एंड दिस वाज द
foundation of first computer. So that's why Charles Babbage is also known as father of computer. Later on, जोसेफ जैकॉर्ड ने पंच कार्ड डिजाइन किया था। पंच कार्ड डिजाइन किया था, इसमें होल्स होते थे और इन होल्स को पढ़ के जो लूम्स है वो ऑटोमेटिकली कुछ वर्क परफॉर्म करता था। ये जो होल्स दिखाई दे रहे हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो किसी स्विच को ऑन या ऑफ करते थे। तो किसी भी स्विच को ऑन और ऑफ करने से उसका इम्पैक्ट अलग आता था। सो दिस Joseph Jacquard has formed a framework for designing punch card for our modern computers. Okay, so on the basis of this we have created a modern computer. तो इसका वीडियो जो है वो ऑलरेडी है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम में जाएंगे, अपनी लॉगिन से स्ट्रीम में चले जाएंगे, स्ट्रीम में जाने के बाद अपने सेक्शन पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो आपको दिखेगा, वहां से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो पंच कार्ड बना रहा है और दूसरा पर्सन जो है इसको अरेंज कर रहा है। इसके बाद है एडा लवलेस। सो चार्ल्स बेबेज के ही लैब में एडा लवलेस जो है वो आई थी। एडा लवलेस ने उनको असिस्ट किया था और उन्होंने प्रोग्रामिंग की थी पंच कार्ड के थ्रू। ठीक है, सो हर फुल नेम इज एडा बैरन काउंटेस ऑफ लवलेस, फाइन, and she was first computer programmer. And most of the time in computer history you can see females are everywhere, okay, for programming purpose and all other purpose. Like in IBM's computer also 6 females, specifically females को ही रखा था क्योंकि उन लोगों की जो प्रोग्रामिंग स्किल है ना, जो प्रोग्राम्स बनाती हैं, ऐसा कंसीडर किया जाता था कि दैट इज वेरी वो काफ़ी अच्छा होता है उनका जो मतलब प्रोग्रामिंग की जो एनालिटिकल स्किल है कि किस तरह से कौन सी स्टेप परफॉर्म करनी है और किस स्टेप के बाद कौन सी स्टेप आएगी। तो ये एडा लवलेस के घर में मैथमेटिक्स का पहले से ही माहौल था और फिर इन्होंने चार्ल्स बेबेज को ज्वाइन किया। इसके बाद टेबुलेटिंग मशीन जो है ये बनाई हॉलड्रिथ ने। हॉलड्रिथ का पंच कार्ड आया। प्रॉब्लम क्या थी कि हर 10 साल में वहां पर जनगणना होती थी और इसको पूरा की पूरा प्रोसेस को काउंट करने के लिए 100 पर्सन्स लगते थे, 100%। अब ये 100% एक साल तक कंप्यूटेशन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब जाके उनका नो इट टुक 10 years to complete until Hollerith punch card is coming. ओके, तो 10 साल, हर 10 साल में तो जनगणना हो रही है और पूरे 10 साल लगते थे इसको कंप्लीट करने में। तो फिर होलरिथ का पंच कार्ड जो आया वो एक ऑटोमेटेड मशीन बनी जो कि यहाँ पर उसमें कुछ वैल्यूज को हम पंच कर देते थे। प्रोसेस विल टेक अराउंड 6 weeks टू काउंट 63 million पॉपुलेशन। ओके, इसके बाद IBM के कंप्यूटर आए। IBM के कंप्यूटर को आपने देख ही लिया कि किस तरह से ये वर्क कर रहा था। यहाँ पर किस तरह से हम पंच कार्ड डालते हैं और ये जो ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है ये इसमें हम लोग प्रोग्राम डालते थे, प्रोग्राम पंच कार्ड। ओके, तो प्रोग्राम पंच कार्ड को हम यहाँ पर प्लेस करते थे और इसके बाद जो भी इनपुट या आउटपुट आपको देना है, इनपुट कार्ड या आउटपुट कार्ड, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन को बताते थे एंड ऑटोमेटिकली इट विल प्रिंट द जॉब और जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो सब यहाँ से आ जाता था। तो हार्वर्ड आइकेन ने मार्क 1 बनाया। मार्क 1 जो है इस टाइम नोटेरी टाइप की जाती है क्या सर? जो नोटेरी टाइप होती है वो भी तो इसी से की जाती है ना। नोटेरी करवाने जाते हैं तो स्टाम्प पेपर टाइप करके देता है। अब मुझे नोटरी का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी वो एनालॉग सिस्टम चलते हैं। 50 रुपए का नोट दिखता है, 100 रुपए का नोट दिखता है, वो नोट वाले ही नोटरी आते हैं, है ना। तो देखना पड़ेगा वो वाले। फिर इसके बाद ये जो है, हाँ मैं समझ गया कि वो कुछ ऐसे मशीन में डालते हैं और खट 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 की आवाज आती है, एंड ऑटोमेटिकली इट विल प्रिंट द नंबर एंड डेट्स आल्सो। एम आई करेक्ट? यस सर। एंड इट इज अ स्मॉल मशीन, नॉट बिग मशीन। बहुत छोटी सी मशीन रहती है।
बट वो ये जो IBM ने बनाई है तो काफी बड़ी थी। खैर IBM ने कब बनाई और अभी जो है इसमें तो काफी सारे मॉडिफिकेशन हो गए। एंड नोटरी मशीन इज जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द नंबर, ऑटोमेटिक इनपुट ऑफ नंबर। ओके, नाउ कम टू हार्वर्ड आइकन। हार्वर्ड आइकन ने क्या बनाया था? मार्क 1 बनाया था। ये कंप्यूटर देखो, ये हार्वर्ड है, हार्वर्ड आइकन, और इन्होंने जो कंप्यूटर बना के दिया था वो दिया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। ओके, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो हिस्टोरिकल कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर आप जाएंगे, पिछले साल 2000 मतलब नवंबर 2019 में इसको फायर भी किया था। फायर करना मतलब इस मशीन को ऑन किया था, एंड दिस मशीन इज फंक्शनल दिस टाइम आल्सो। टाइम टू टाइम इट विल बी ऑपरेटेड। और ये जो मशीन थी 51 इंच इसकी लेंथ थी, और 51 फीट नॉट इंच, एंड 8 फीट इसकी हाइट थी। ठीक है, तो जैसा हमारा एक घर होता है उतना वो स्पेस, घर का एक कमरे के बराबर स्पेस ये लेती थी मशीन। इसके बाद फिर 1939 और 42 के बीच में ABC कंप्यूटर बना, जो एटनस ऑफ क्लिफोर्ड बैरी ने बनाया था, और इनके नाम के फर्स्ट वर्ड के हिसाब से इसका नाम ABC दिया। ओके, तो ABC में जो ड्रम्स थे, मैग्नेटिक ड्रम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया था, और ये ड्रम जो है अलग अलग चीज़ों का कॉन्सेप्ट था इसमें, और इसके हिसाब से ये पूरा की पूरा कंप्यूटेशन करता था एंड प्रिंट आउट निकालता था। पहले एक्चुअली इनपुट डिवाइसेस जो थी ये पंच कार्ड ही थी और मैग्नेटिक ड्रम, और जो आउटपुट डिवाइसेस हुआ करते थे वो प्रिंट आउट निकला करते थे बस। इसके अलावा कोई मॉनिटर नहीं। यदि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। जो भी ठीक यदि आपने बना दिया वो बन गया, हार्ड वायर्ड, यानी इस पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद ENIAC और ENIAC सिस्टम आए जो कि माइक्रो प्रोग्राम थे। नहीं, ये भी हार्ड वायर्ड ही थे, माइक्रो प्रोग्राम नहीं थे। हार्ड वायर्ड का मतलब ये होता है कि ऐड करने के लिए एक अलग मशीनरी लगेगी, सब्ट्रैक्ट करने के लिए अलग सर्किट बनेगा, डिवाइड करने के लिए अलग सर्किट बनेगा। तो ये पूरे सर्किट यहाँ पर बने थे। ये 1500 स्क्वायर फीट वाले हॉल में इंस्टॉल होता था ये सिस्टम, और इसके बाद यानी समझ लो कि 3 बेडरूम हाउस के लिए जितना स्पेस चाहिए, 3 या 5 बेडरूम हाउस बन जाते हैं आजकल 1500 में। तो ये उतना बड़ा सिस्टम था, और यहाँ पर हम लोगों को क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करनी पड़ती थी, और ये वैक्यूम ट्यूब्स को क्या है, बार बार बदलना पड़ता था, है ना। तो इस वजह से ये बहुत रिवॉल्यूशनरी तो नहीं था, लेकिन हमारे रिजल्ट तो आ ही जाते थे। फिर धीरे से ना इसी टाइम पे एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन बनाई, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। ये केवल प्रोटोटाइप था, पर यहाँ पर खास बात ये थी कि आपको पूरे सर्किट बदलने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ प्रोग्राम लिखना है, जो पंच कार्ड में प्रोग्रामिंग की स्टेप है उसको बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम सिस्टम हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल था, हर एक चीज पे ये रन हो जाता था। सो दिस वाज मैजिकल मशीन क्रिएटेड बाय ट्यूरिंग। फिर जॉन वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आ गए। इन्होंने बताया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो थी हमारे पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी थी, बस एक मेमोरी यूनिट हमने ऐड कर दी सो दैट हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस बहुत आसानी से करने लगे। फिर ट्रांजिस्टर्स आए 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये ट्रांजिस्टर की खास बात ये थी कि जैसे कि बल्ब जो है, वैक्यूम ट्यूब जो है एक बल्ब के बराबर स्पेस लेते थे, हीट डिसिपेशन ज़्यादा होता था। एक मोहल्ले में जितने पावर की सप्लाई होती थी उतना अकेले उस कंप्यूटर में होती थी, तो उसके लिए एक अलग पावर स्टेशन की जरूरत पड़ती थी। ट्रांजिस्टर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा पावर डिसिपेशन कम हो गया। एक घर में जितने पावर की जरूरत होती है उतने ही पावर से सारे काम शुरू होने लगे। ओके, एंड इट्स स्पीड इज ऑल्सो वेरी हाई। बहुत ज़्यादा हीट डिसिपेशन होता नहीं था, गर्म ये होते नहीं थे, कैलकुलेशन फास्ट होने लगा। तो ये ट्रांजिस्टर्स हम लेके आए, और इस ट्रांजिस्टर पे बेस्ड एक डिवाइस था रेडियो। सो दिस वाज, अभी तक इसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो कहाँ देखना है, तो मैदान में देखना है, लेकिन सुनना कहाँ है, तो ट्रांजिस्टर में सुनना है। रेडियो में कोई नहीं सुनता था, सब ट्रांजिस्टर में ही सुना करते थे। इसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर बग, एक्चुअली एक प्रोग्राम लिख रहे थे
प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे पास मेथड होती है। जो कॉलम दिख रहा है, पर्टिकुलर कॉलम हमारे पास बने हुए हैं। यहाँ पर ये कॉलम नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक कॉलम को लिखने का अलग अलग तरीका है। तो 8 कॉलम तक हम क्या लिखेंगे, 4th कॉलम तक क्या नंबर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। और यदि आपने इसको थोड़ा सा भी एक स्पेस भी आप इधर उधर किया, एरर जो है, इससे हम लोग कोबोल का प्रोग्राम बनाते थे। कोबोल में यही प्रॉब्लम रहती थी। तो यदि मैंने 8th पोजीशन पे 777 नहीं लिखा, ठीक है, और मैंने ये डायरेक्ट लेफ्ट से लिखना शुरू कर दिया, तो लगभग 1000 एरर्स रहती थी। और जैसे ही मैं इसको सुधारता था, तो इट विल चेंज टू 0 एरर। एंड द कंपाइलर साइज फॉर COBOL program is around 40 KB, 40 KB का कंपाइलर हुआ करता था, ठीक है। उसी टाइम से C का कंपाइलर भी आता था, जिसके लिए 500 MB स्पेस चाहिए होता था, और ये 40 KB में आता था। तो इस वजह से इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी कंपाइल करने के लिए। अब क्या हुआ कि ये जो ग्रेस होपर है, ग्रेस होपर ने अपना प्रोग्राम लिखा और इस बीच एक मक्खी आके वहां बैठ गई, और बैठ के गई, वो मर गई वहीं। तो उतनी जगह छोड़ के इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखना शुरू किया। अब ये चिपका दिया, और जिसके पास ये प्रोग्राम गया, जिसने टाइप किया, उसने केवल ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, मैंने बैकग्राउंड में भी ऐसे ही बॉक्सेस रखे, सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों को समझा सकूं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी एक इफेक्टिव कॉलम दिख रहा है, वहां से प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। अब प्रोग्राम लिखा तो बहुत सारे एरर आ गए। एरर आने की वजह से इस पर्टिकुलर टर्म को नाम दिया गया बग। और जैसे हमने इसको वापस इस पोजीशन पे लाया, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम 1000 एरर थी, उससे 0 एरर पे आ गया। सो दिस विल बिकम डीबग। ओके, सो टू फाइंडिंग एरर इज नोन एज डीबगिंग। एक्चुअली एरर को फाइंड करके उसको ग्रेस it's not possible changes आए। फिर am I audible now? Yes. Yes, sir. Okay. So यहाँ Visible, sir. पर yes, PowerPoint is visible now. PowerPoint is visible. No, sir. No, sir. No, sir. It's Okay. fully black. Yes or no? It's visible. Yes, sir. Yes, sir. it's visible. Visible. Okay. So अब धीरे से क्या हो गया था कि मैकिंटॉश पीसी आया। मैकिंटॉश में पहला वर्जन जो बना था वो लीजा नाम से बना था। तो लीजा जो है वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाया, बहुत महंगा सिस्टम था। तो इसकी वजह से फिर मैकिंटॉश एग्जिस्टेंस में आया, और मैकिंटॉश की कीमत जो थी $2500 थी उस टाइम पे, ठीक है। फिर इसके बाद विंडोज का पीसी आया। विंडोज के पीसी की कोई कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, और विंडोज का पीसी भी बहुत पॉपुलर हुआ, और अभी तक पॉपुलर है, क्योंकि ये किसी भी हार्डवेयर पे रन हो सकता है। एप्पल एक्चुअली दे यूज देयर ओन मदरबोर्ड, मतलब वो बनाते हैं, फैब्रिकेट करके बुलवाते हैं, लेकिन उनकी असेंबली अलग होगी। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप
जेनिथ का पीसी यूज कर रहा है, एचपी का पीसी यूज कर रहा है, आईबीएम का मैकिंटॉश नहीं होता है ना, सॉरी आईबीएम का एप्पल नहीं हो सकता। एप्पल मतलब एप्पल, पूरा ऊपर से नीचे तक सारी चीजें एप्पल ही रहेगी, है ना। तो जितना महंगा एप्पल रहता है उतना महंगा एप्पल का सिस्टम भी रहता है। तो ये तो फंडामेंटल हो गया था। इसके बाद हमारे पास नंबर सिस्टम मैंने सारे बताए थे। तो नंबर सिस्टम को अब हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो डाउट सर। No, sir. No. Okay. So let me introduce concept of different number system. C section के बच्चे आ गए क्या? C section से कोई आया है? कौन है? कोई नहीं आया। अब इनको तो पूरी रिक्वेस्ट भी भेजी थी, अब ये लोग खुद ही पढ़ लेंगे, है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी को सारे कॉन्सेप्ट पता है, बस थोड़ा सा लाइन अप कर देता हूँ मैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। ओके। और मैं सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को फोकस करता हूँ अभी, ठीक है। बाकी ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ पर 0 और 1 है, यानी आपके पास इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं, साइन नंबर और अनसाइन नंबर, ठीक है। अब आप साइन नंबर और अनसाइन नंबर को कैसे लिखेंगे? सपोज 8 बिट का नंबर है, 8 बिट के नंबर के लिए हमको रेंज बनानी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? यस, माय स्क्रीन इज नॉट, Sir, screen is not visible. Screen is not visible, sir. Give me 1 minute. Give me 1 minute. You take Now is it network. Yes, Now sir. it's visible. Yes, sir. It's visible now. Yes, sir. Sir, visible now. देखिए, साइन और अनसाइन नंबर का बहुत सिंपल सा मैजिक मैं बताता हूँ आपको। आज ये आप 8 बिट तो समझने लगे हैं, अब आप बिट से कैलकुलेशन भी समझ में आने लगे आप लोगों को, एग्री और नॉट? Yes, sir. अब हम साइन नंबर बनाना सीखते हैं। ये नंबर लिया हमने 3 4 1 2, ये हो गया। टोटल 8 बिट दिखाई दे रही है आप लोगों को? 0 1 Yes, 2 4 5 6 7 यानी 8, है ना। हम क्या करते हैं, 7th पोजीशन को रखते हैं, यानी 8th पोजीशन को रखते हैं साइन के लिए। अब यहाँ पर साइन के लिए रखा तो प्लस और माइनस साइन है, प्लस रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड माइनस रिप्रेजेंटेड बाय 1। ओके, क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पर? नो डाउट। नाउ यस, अब आप नंबर लिखिए 1 1 1 1 0 1 0 1। ये क्या नंबर लिखा हुआ है मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा, फिर आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। या आप अपने हिसाब से बता दीजिए क्या नंबर लिखा है। इसका वेट है 1, बस इसका वेट है 0 1 2 3 4 5 6 7। मुझे एक्चुअली पावर सबकी पता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 128 7th वाले का है, 6th वाले का 64, 5th वाले का 32 और 4th वाले का 16, ठीक है। और 2 वाले का 4 और 0th वाले का 1 को आपस में ऐड करो तो 1 + 4 5, 5 + 16 21, 21 + 32 53, 53 + 64, 53 + 64 is
इतना आया 117 117. करेक्ट, ये आया। अब ये साइन बिट है ना ये वाली, तो इसके आगे लगा दो माइनस, ठीक है, -128 + 117, क्या आया आंसर? 8 - 7 is 1, 2 - 1 is 1, and 1 - 1 is 11. 0. So this -11. -11 is written. This number is -11. And ultimately it proves that 1 is for sign. Okay, 1 is for sign. तो ये साइन के हिसाब से माइनस, जब भी यदि हम 1 से स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव नंबर आएगा। अभी आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सी प्रॉब्लम रखते हैं एडिशन की। 1 1 + 1 1 कितना आंसर आएगा? 4 4 8, 1000 आएगा आंसर इसका, ठीक है। 1 + 1 कितना होता है? 10। 1 + 1 is 10, 1 + 1 + 1 is 11, and 1 + 0 is 1, and 0 + 1 is also 1। क्लियर है? अभी आपको इतना ही याद रखना है। अब रिमाइंडर का 1 बचा तो ये आ गया आपका 11। ओके, दिस इज 3 एंड दिस इज 3, 3 3 6, करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। इस तरह के एडिशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको? अभी हम सिर्फ बाइनरी नंबर, इसलिए कहीं पर भी 2 नहीं लिख रहे, कोई प्रॉब्लम आ सकती है? यस, सुनाई आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ये तो सिंपल है, एडिशन तो सबसे बन जाएगा ना। यस सर। यस सर। चलो अब मैं सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर इतने छोटे टाइम के लिए मैं डेसिमल में यूज आ रहा हूँ। डेसिमल सब्ट्रैक्शन 35 - 29 करना है, ठीक है। कंप्यूटर को सब्ट्रैक्शन करते आता ही नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर को क्या नहीं आता? सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। तो हाँ, कंप्यूटर क्या जानता है? एडिशन। और यहाँ पर थोड़े से क्लू रहते हैं। 75, अब ये जो 29 लिखा है ना, इसका 9s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, 9s कॉम्प्लीमेंट। तो 9s कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इस नंबर में कितना ऐड करें तो 9 आएगा। तो इस नंबर में हम कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा? 0। जो भी साइंड नंबर है, साइन नंबर, केवल साइन नंबर में। और 2 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा? 7. ग्रेट। नाउ यदि आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट हमेशा ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा। कम आएगा। यदि दो डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट का नंबर तो नहीं आएगा? नो सर। नहीं आएगा, है ना। कोई भी एक जन ऑन करके रख ले सिस्टम, तो मैं जो क्वेश्चन पूछूं बस। अब आप इनको ऐड कीजिए। ऐड करने पर क्या आया? 5 और 7 7 कितना आया? 14, और रिमाइंडर में कितना बचा? 1, ठीक है। अब 1 बचा एक्स्ट्रा 1, it shows that result is positive. We need to add here. So what is the answer? 46. यदि आप 75 में से 29 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 46 आता है क्या? चेक करो। Yes, sir. आता है? Yes, sir. हाँ। ओके, अभी मैंने आपको 9s कॉम्प्लीमेंट बताया। 9s कॉम्प्लीमेंट में जो भी रिजल्ट आता है उसमें आपको 1 ऐड करना पड़ता है। अब मैं आपको 10s कॉम्प्लीमेंट बताऊं। सेम प्रॉब्लम यूजिंग 10s कॉम्प्लीमेंट। 75 - 29। ओके, अब 75 के आगे कोई निशान नहीं है, इसलिए ये 75 है। एडिशन प्लस का निशान है, प्लस का सिंबल है, इसलिए। अब 29 का 9s कितना होता है? 29 का 9s होता है 70, और इसमें हम यहीं पर डायरेक्टली 1 ऐड कर दे तो इट विल बिकम 10s कॉम्प्लीमेंट। and add these number together. So 5 + 1 6, 7 + 7 14. Okay, and this additional one says that
the result is positive. So positive 46 is the answer. अब हम इसका उल्टा करके देखते हैं, है ना? सर ये तो समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं सर, दोबारा बता दीजिए एक बार। हाँ, जो भी 9s कॉम्प्लीमेंट में रिजल्ट निकालते हैं उसमें हम केवल 1 ऐड कर देते तो इट विल बिकम 10s कॉम्प्लीमेंट, केवल एक ही प्लेस। 9s कॉम्प्लीमेंट Sir, निकालना 9s दोबारा। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके पास है 4334 एक नंबर दिया और आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 29, ठीक है? अब इसका आपको 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 9s कॉम्प्लीमेंट किस बेसिस पे निकलता है? जो मैक्सिमम डिजिट होती है उस पे, तो उसके आगे ऑटोमेटिकली क्या लगना है? 0। तो आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली 9999। जब आप 10s की बात करते हैं ना, तो इस 9999 की जगह सिर्फ 000 लिख लो और लास्ट में एक 1 बढ़ा दो, तो इट विल बिकम 10s कॉम्प्लीमेंट। जब आप इसको 10,000 में से घटाएंगे तो जो भी आंसर आएगा, यदि ये इतने ही डिजिट होते तो 1000 में से घटाने पर जो आंसर आएगा, इतने डिजिट होते तो 100 में से घटाने पर जो आंसर आएगा, इतने डिजिट होते तो 10 में से घटाने पे जो आंसर आएगा, और नहीं होता तो घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? समझ में आया? यस सर। 10s का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। तो आप देखो 77, हाँ 29 में से यदि आप 29 को 100 में से घटाते तो क्या आंसर आता है? 46 आता है। नहीं 46 नहीं आएगा, 71 आएगा ना। और अल्टीमेटली यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका? 71 ही आ रहा है ना। यस सर। दोनों का ऊपर वाला तो एज इट इज है, हम केवल 10s कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा आइडिया आप लोगों को 10s कॉम्प्लीमेंट का भी लग गया। अब हम बाइनरी नहीं, अभी हम एक और प्रॉब्लम करते हैं, 29 माइनस 75 करते हैं। अब इसमें क्या होगा? 29 तो 29 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 75 इज 4 and 2, ओके, एंड प्लस हमने 1 कर दिया, पहले ही 1 कर दिया, 10s कॉम्प्लीमेंट की तरफ जा रहे हैं। और यदि आप लोग 10s कॉम्प्लीमेंट में नहीं है इंटरेस्टेड तो मैं 10s पे नहीं जाता हूँ, 9s पे ही पहले सॉल्व कर लेता हूँ। अगले हफ्ते लैब में फिर से हम इसी के आगे की प्रॉब्लम करेंगे, तो आप लोग मुझे बता देंगे कि कहाँ से क्लास है, या फिर आप लोग अपने टीचर को कन्वे कर देंगे कि नेक्स्ट वीक वी हैव क्लासेस फ्रॉम 3:30, ओके? और केमिस्ट्री और फिजिक्स वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नहीं है ना? हम मतलब क्योंकि एडिशनल टाइम लगेगा इसलिए हम इसको ये कर रहे हैं। और अभी ऐसा तो नहीं हो गया कि आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट वैनिश हो गया, एकदम से सिर के ऊपर से चले गया? नो सर। नो सर। ठीक, ओके। अब यहाँ पर हम 9s पे ही काम कर रहे हैं, अभी हम 10s की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अब ये 9s निकल गया, इन दोनों को ऐड किया तो 9 + 4 कितना हो गया? 13, और ये आ गया 5। अब हमारे पास जब आंसर है, एक नेगेटिव नंबर बड़ा है ना? और नेगेटिव नंबर बड़ा है और यहाँ पर बचा 0, इसका मतलब ये है कि जो आंसर है वो नेगेटिव में है। तो आंसर जब नेगेटिव में आता है तो इसका वापस से हम लोग 9s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जब वापस से 9s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो दिस नंबर इज व्हाट? दिस नंबर इज 6 एंड दिस नंबर इज 4, तो -46, ठीक है? ये तो डायरेक्ट 9 to 9 में आ गया। अब 10s कॉम्प्लीमेंट में क्या प्रोसेस होगी देख रहे हैं इसको? कुछ यहाँ पर डाउटफुल लग रहा है आप लोगों को? So that वो यस। 9 हाँ, 9s कैसे? हाँ देखिए,
जब भी यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 बचेगा ना तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है। लेकिन जब भी आपका यहाँ एक्स्ट्रा 0 बचता है तो आपको हमेशा इसका, यदि आपने 9s कॉम्प्लीमेंट फॉलो किया तो 9s निकालना है, यदि आपने 10s कॉम्प्लीमेंट फॉलो किया तो 10s निकालना है। मैं दोनों से आपको करके दिखाता हूँ फिर से। सर ये 24 कहाँ से आया? 24 कहाँ पर आ गया? अच्छा 24 कैसे आया आप खुद बताओ मुझे। नेगेटिव नंबर कौन सा है इसमें? -75 सर। तो उसी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, हमेशा कॉम्प्लीमेंट किसका निकलेगा? जो नेगेटिव नंबर रहेगा, ओके है ना। तो 75 का कॉम्प्लीमेंट 9s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 24। 75 में क्या जोड़े तो आंसर आया 99। 24 एग्री? यस सर, यस सर। तो 29 माइनस क्या इधर नंबर दिया हुआ 75। अब हम चलते हैं 10s कॉम्प्लीमेंट की तरफ। 10s कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं? 29 तो एज इट इज लिखते हैं। 75 का कितना हो गया? 75 का हो गया 4 और 2, और इसमें हमने यहीं पर 1 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 10s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस number is actually 9s, and when we add 1 with this so it will become 10s complement। 99 में क्या ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। आपको बस ऐसे याद करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करना है, इसके बाद आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्यों लिख रहे हैं। तो 9 + 4 कितना हो गया? 13, 13 + 1 14। ओके, अब 2 + 2 4, ये 4 लिखा। अब आप देखिए इसका जब 9s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आएगा? नहीं, ये 54 है, बिकॉज रिमाइंडर का 1 भी है, तो ये आ गया आपके पास 54। 54 का जब आपने 9s कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या है? 45। अब 9s कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं निकालना है, एक्चुअली 9s + 1 यानी 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपको यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। एंड बिकॉज दिस डिजिट हैज 0 so answer is negative, that's why the answer, the whole answer, I am not going to put plus symbol over here, and this answer is -46। ओके, क्योंकि आप प्लस में तो कंफ्यूज ही होते रहेंगे, या फिर प्लस लगा दे और बाहर में आप माइनस लगाए। तो एक सवाल आप लोग करो, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। 103 - 39 और 59 - 103। पहले इसको आप 9s से भर करो और फिर इसको 9s से भर करो, दोनों को 9s से करो, इसके बाद दोनों को 10s से करो। ठीक है, तो आप लोग 5 मिनट में हो जाए, 5-7 मिनट में। यस सर। ओके, सो स्टार्ट करो। 4 प्रॉब्लम है, 4 अलग अलग।
लिखा हुआ Sir, हम्म, sir, 9 is तो 10 is नहीं पता। एक्चुअली जो कंप्यूटर है ना वो मैं तो सिर्फ इसमें बता रहा हूँ, डेसिबल में बता रहा हूँ, इसलिए 10s करके बता रहा हूँ। अदरवाइज बाइनरी में जब आप यूज करते हो, बाइनरी में होता है 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट। दिस 2s इज नोन एज 10s कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो 2s ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इस टर्म को यूज भी मत करना। तो 2s कॉम्प्लीमेंट ही हमेशा यूज होता है एंड इट इज वेरी नेचुरल। जैसे अभी हमने नेगेटिव नंबर देखा था ना, वहां पर वो 2s कॉम्प्लीमेंट से भी निकल सकता है बहुत आसानी से। करके दिखाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों यूज करते। बहुत ही नेचुरल है और एकदम नेचुरल है ये। पहले आप डेसिमल वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको एक बार यकीन हो जाएगा कि हाँ इस तरह से आंसर सही सही निकलता है, इसका मतलब फिर बाइनरी के लिए भी सही निकलेगा। सर हो गया। हाँ बताइए क्या क्या किया स्टेप बाय स्टेप। 103 माइनस फर्स्ट प्रॉब्लम। 103 माइनस में क्या किया आपने? 39। नो, सो सर 039 किया। 999 माइनस 039। यस, सो व्हाट इज द सर आंसर? 960 आ जाएगा। 103 से आ गया आपका 963। ओके, अब यदि 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट से एक भी आंसर ज्यादा आता है, इसका मतलब आंसर क्या है? पॉजिटिव है। तो क्या आ गया था यहाँ पर? 66 और 1066 आया आपका। यस सर, 1066। हाँ जी सर। So because this number is positive, we need to add 1. Okay, this one 9s में इस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं और आपको क्लियर कट समझ में भी आ जाता है। So the correct answer is 67। ऐसा ही किया है आपने? यस सर। सिमिलर प्रोसेस यदि आप 39 माइनस 103 क्लिक करते हैं, पॉजिटिव नंबर में आपको जीरो ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर यू कैन राइट एज यूजुअल। हाँ, नेगेटिव नंबर में ही जीरो ऐड करना है यदि विड्थ, हमको एक्चुअली विड्थ मैच करनी रहती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, विड्थ या डिग्री ऑफ नंबर। ओके, सो डिग्री ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 3 प्लेसेस आर देयर। अब इसके बाद हम इसका 9s निकालते हैं। तो क्या आया 9s? सर वो 960 आना चाहिए ना, 963 कैसे आ रहा है? सर 64 आंसर होना चाहिए। हाँ, ठीक है, 64 आंसर सही होना है, चाहिए सर। बिल्कुल सही। मतलब तुम लोग को सब समझ में आ चुका है। दैट्स गुड। ओके, तो ये पर्पसली लिखा गया था ताकि आप लोग बता सको कि क्या है आगे। अब इसके आगे बताइए इसमें क्या होगा? दिस इज 8 9 एंड 6। ओके, 9 + 6
9 3 12 1 13 और ये आया 935 और यहाँ 0 बचा। 0 बचा, इसका मतलब ये जो आंसर है इसको आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट करोगे -1 अगेन, जैसे 0 बचता है उसी सिचुएशन में आपको माइनस करना है। 1 बचता है पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर को ही आपको माइनस कॉम्प्लीमेंट करके चेक करने की जरूरत है। सो दिस इज 4, दिस इज 6 and this is 0. So answer is correct, -64. Okay. कोई डाउट? नो सर। ऐसा ही किया सभी ने? सर ये तो 10s वाला हो गया ना? माइनस वाला वो। अभी हमने सर 10s 1 ऐड कुछ किया कर ही नहीं, 9s ही किया है अभी। सर ये नीचे 64 वाला समझ में नहीं आया। हाँ सर, आपने पहले तो बताया था कि +1 करना होता है। +1 करना होता है, मैंने ये भी बताया था कि जब डिग्री ऑफ नंबर से आगे 1 नहीं आता है। यहाँ पर डिग्री ऑफ नंबर से आगे 1 आ गया, इस नंबर की डिग्री 4 हो गई, पर स्टिल जब हम 2 नंबर ऐड कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ दिस नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। तो यहाँ पर 4 डिग्री आनी चाहिए, लेकिन 3 ही डिग्री आई है ना, यानी 4th डिग्री पे जो नंबर है वो क्या है, 0 आया। तो जब 0 आता है तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 0 का मतलब है नेगेटिव। केवल इस प्रॉब्लम के लिए, हाँ इस प्रॉब्लम के लिए, मतलब जब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे डेसिमल में तो 0 का मतलब हो गया नेगेटिव। क्लियर? तो जब Yes, भी sir. नेगेटिव नंबर है तो हम उसका माइनस कॉम्प्लीमेंट निकाल के चेक करते हैं। तो ये आंसर आता है 64 -60। ठीक है, कोई डाउट? Yes sir. जब भी हम अभी हम इसमें भी देखेंगे ना, 10s में भी सेम प्रॉब्लम आएगी। 10s में 10s करते हैं, 9s में 9s करते हैं। 103 - 39, तो ये 039 लिखा। इसके बाद हमने इसका 9s निकाला, 9s कितना हो गया, 960। फिर इसका 10s निकाला, मैं डायरेक्टली 10s निकालता हूँ, तो 961 इज अवर 10s और ये 103। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 4, ये 6 और ये 0 और 1। अब ये जो डिग्री से बाहर जाने पर नंबर आया 1, इसका मतलब आंसर इज पॉजिटिव। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यस सर। नो सर। नो। मैंने डायरेक्ट 10s लिख लिया है ना, इसी तरह से आप लोग भी 10s लिखना, नीचे 1 मत ऐड कर। ओके। 1 0। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 39 - 103। तो देखिए 39 तो 39 ही है, इसका 9s निकाला तो कितना हो गया, 896। फिर इसका 10s निकाला तो कितना हो गया, 39 तो पॉजिटिव है तो स्टिल 39, और ये इसका 10s कितना हो गया, एक और ऐड कर दिया तो ये आ गया 7 का 9 और 8 का 8। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने पर यहाँ पर 1 बचना चाहिए तो पॉजिटिव, 0 बचेगा तो देखते हैं क्या करता है। तो 9 + 7 16 आ गया, 1 9 + 3 12 1 13 और ये 936 आया। क्लियर है? अब 936 और यहाँ पर 0, इसका मतलब नेगेटिव नंबर। तो हम इसका क्या करेंगे, 10s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। पहले 9s निकाला, तो 9s निकालने पर क्या आ गया, 0 6 एंड, और फिर इसका 1s और निकाल दिया तो क्या बन गया, ये 64 और आंसर इज नेगेटिव। ठीक है, इसको 10s ही लिखना ठीक रहेगा। क्लियर? कोई डाउट? सर 935 आना चाहिए था। क्या चीज? क्या प्रॉब्लम? सर वहाँ पे 935 आना चाहिए था ना। 935 क्यों आना चाहिए था? 9 - 7 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है। यस सर।
फिर 3 + 9 12, 12 + 1 13, सब ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके सर। और कॉम्प्लीमेंट तो हमारे लिए इजी है ना, हमको तो पता है कि कितना ऐड करने पर 9 बन जाएगा वो नंबर, इसलिए हम हर जगह सिर्फ ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन अब भूल जाना। हो जाएगा ये। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है ना। अगले हफ्ते आप लोग बताओगे, और बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री वाले और फिजिक्स वाले, ऐसा तो नहीं लग रहा था, बोर फीलिंग तो नहीं आ रही थी? No, sir. नहीं सर। No, sir. हाँ, और देखिए बाकी जो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन वाले हैं, जब हम सी की प्रोग्रामिंग भी करेंगे, आपको इसका कोई अटेंडेंस नहीं मिलना है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ज्वाइन करो, पर मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो आप लोगों को सीखने को ही कुछ मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स वालों के लिए अलग से लैब चलते रहेगी, है ना, तो हम सारे प्रोग्राम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. तो आज केमिस्ट्री में अंशु पेपर देने गई है ना, गायत्री प्रेजेंट है, पारुल भी प्रेजेंट है, विकास भी प्रेजेंट है, पंकज भी प्रेजेंट है, और कौन है केमिस्ट्री में? सर मैं भी, पिंकी। हाँ हाँ, पिंकी। यस और इसके अलावा एक और अभी नया स्टूडेंट ज्वाइन किया ना, वर्षा। वर्षा एब्सेंट है ना, वर्षा की कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आई। उसके भी अच्छा एग्जाम, समी, इसके भी एग्जाम्स हैं। अच्छा वर्षा के भी एग्जाम है, ठीक है। और ये समीक्षा जैन जो है, ये कौन से सेक्शन से है? सर सेक्शन बी। नाम तो मैंने देखा नहीं, अभी ऐड नहीं हुआ क्या? नहीं सर, अभी ऐड नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। और अनिल वो इसमें मैथ से? अनिल यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। तो मैं तो केमिस्ट्री फिजिक्स की तो अटेंडेंस हो जाएगी। अब नंबर सिस्टम में आप लोग जो इंटरनेट पे मटेरियल मिल रहा है उसे चेक कर लेंगे, ठीक है। अगले हफ्ते मैं सीधे एरिथमेटिक पे आऊंगा, और जो मैंने फर्स्ट मैजिकल मैथमेटिक्स बताई है जिसमें माइनस हम डायरेक्ट लगाते हैं, वो उससे इनकॉर्पोरेट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और क्लास में प्रोग्रामिंग चलते रहेगी, है ना, तो हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और आप लोगों को बिल्कुल एडिशनल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर मेन एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत धैर्य के साथ आप लोगों ने क्लास अटेंड की, और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच टू हेमंत ऑल्सो, बिकॉज ही हैज टॉलरेटेड हिंदी ऑल्सो, है ना। हेमंत, आपको हिंदी आती है या नहीं आती है? नहीं आती सर। नहीं आती, वेरी गुड, क्या आंसर है, लवली। ओके, सो थोड़ा बहुत हमने सिखाया है सर। हाँ, उसको सिखाओ, क्योंकि क्या होगा कि बाकी लोग नहीं तो मेरी क्लास से बाहर चले जाएंगे, सिर्फ हेमंत पर रहेगा मेरी क्लास में, है ना। हो जाएगा हेमंत, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक योर एक्स्ट्रा क्लास इफ यू वांट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।